So hey guys, hello, what's up, welcome back to another video. And today in this particular video we will be discussing about the score at which you will get BIT Mesra definitely, means Mesra campus definitely for MCA, and your Mesra campus is confirmed or not. And we will be discussing about the score at which you cannot get, and or you can consider that there are very less chances to get inside Mesra campus, especially for those students. This video is gonna be very helpful. So if you're really interested to know the answers of these questions, then please keep watching this video till last, because in last portion I will be discussing about some counseling procedure related thing. So keep watching this video till last. And before moving ahead, one more thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, then please subscribe and hit that subscribe button and show your support, and that will be really very motivating for me to make these kind of content for you guys. And if you have any query, then please comment down, I will reply as soon as possible. So guys, now without wasting time, let's start today's video. So before moving further ahead, let me introduce myself first. So as you all know that my name is Keshav Tyagi, and I am 2022 pass out, means current year pass out from BIT Mesra main campus, and I am currently working as an intern in a MNC. And currently I have 3 FTE offer letters in hand. So my intern will going to end on 30 June, and after that maybe from mid of July I will be joining as a full-time employee in one of the 3 organization. I will be joining as a FTE. So this is all about me, because कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न था कि मैं हूँ कौन और मैं एडमिशन लूँगा या ले लिया है या फिर करंटली वहाँ पे पढ़ रहा हूँ. सो भाई मैं पास आउट हूँ और बस डिग्री लेना मेरा बचा है, बाकी मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है. माय प्लेसमेंट इज़ डन, माय कोर्स इज़ कंप्लीटेड, एंड सब चीज़ मेरी पूरी हो चुकी हैं. सो नाउ दिस थिंग इज़ क्लियर. कुछ ने बोला कि भाई तेरा प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कितने का हुआ वो डाल. कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई तू अभी एडमिशन लेगा या फिर तेरा हो चुका है वहाँ पे या क्या. सो आई हैव क्लियर्ड ऑल द क्वेश्चन, एंड एज टाइम पासिस एंड आई विल बी जॉइंड एज एन FTE, देन आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन माई प्लेसमेंट. सो अभी स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा जो है हमारा, और जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So guys, before moving ahead, let me tell you one thing, that please watch this video till last, because after watching this video I promise you that you will have a clear picture in your mind, or you have a clear clarity that you are going to get admission in BIT Mesra or not. So this is gonna be a very important video for all of you. So now let's start our today's video. So we will be starting from 2017 and we will go up to 2022. इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है, हम वहाँ तक जाएंगे और स्टार्ट करते हैं 2017 के सिनेरियो से जो था. अभी मैं कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ. जो 2017 में था, 2018 में था, 19 में था, 20 में था, 21 में था. 17 वाला बढ़ के हुआ 18 में, फिर बड़ा 19 में हुआ, फिर थोड़ा बड़ा 20 में हुआ, और अभी जो कंपटीशन है ना वो पीक पे है. पहले क्या होता था 17-18 में, एक रैंक पे एक स्कोर पे 2-3 बच्चे रहते थे, या फिर एक बच्चा रहता था, फिर दूसरा 3-4 छोड़ के नेक्स्ट स्कोर पे खड़ा हुआ है. तो उधर एडमिशन होना थोड़ा इजी था, लेकिन आज के टाइम में एडमिशन होना बहुत हार्ड है, क्योंकि 60 सीट हैं टोटल, 30 रिजर्वेशन है, 30 ऑल इंडिया है, इसमें भी SC ST घुसा हुआ है, प्लस तुम्हारा यहाँ पे कोटा और भी है, रिज़र्वेशन और भी है, 1-2 रिज़र्वेशन, 1-2-3 सीट और चली जाती हैं ऐसी इधर उधर. सो
ये जो मैं भी बताऊंगा तो उसको फाइनल मत समझ लेना, लेकिन 99% वही छपेगा, वही अप्लाई होगा, क्योंकि जो लास्ट 5 साल से चला रहा है ड्रास्टिकली तो चेंज होगा नहीं। सो 19-20 रहेगा, 19-20 अप डाउन हो सकता है, बट एग्जैक्टली यही रहने वाला है इस साल भी, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं 2017 से। 2 पार्ट में रखूँगा, एक होम स्टेट रखूँगा एंड द सेकंड वन इज़ ऑल इंडिया कैटेगरी। तो स्टार्ट करते हैं एससी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से। सो एससी कैटेगरी जो ओपन हुआ था 165 पे, क्लोज़ हो गया था 80 पे। एसटी कैटेगरी स्टार्ट हुआ था 147 पे, क्लोज़ हो गया था 50 पे। जनरल कैटेगरी फॉर झारखंड स्टेट ओनली 215 पे स्टार्ट हुआ था, क्लोज़ हुआ था 166 पे। ऑल इंडिया की बात करें तो एससी कैटेगरी स्टार्ट हुआ था 211 पे, क्लोज़ हुआ था 140 पे। एसटी कैटेगरी स्टार्ट हुआ था 208 पे, क्लोज़ हुआ था 104 पे। और जनरल कैटेगरी 320 पे स्टार्ट हुआ था और 247 पे क्लोज़ हुआ था। इतना जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर 2017 से 2022 तक आऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, 7.5 मिनट का भी हो चुका है। सो जल्दी लूँगा, जिस रेंज में तुम लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डिसाइड ऑन योर ओन। तो मैं सिर्फ यहाँ पे पूरा एनालिसिस बता दे रहा हूँ, डिसाइड तुमको करना है। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम किस स्कोर में लाई कर रहे हो, तो तुम्हें काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए। मींस तुम्हें अगर कोई एक्सटेंशन कैंपस अलॉट हुआ है तो तुम्हें वहाँ लेना भी है या नहीं लेना है, वो मैं बताऊँगा। उसके ड्रॉबैक मैं बताऊँगा, उसके डिसएडवांटेजेस भी मैं क्लियर कर दूँगा इसी वीडियो के लास्ट में। सो अभी पहले ये देख लो। सो ये फर्स्ट प्रोविज़नल लिस्ट में ये गया। बात करते हैं सेकंड प्रोविज़नल लिस्ट की। 2017 में सेकंड प्रोविज़नल लिस्ट आई, उसमें सेम 2 कैटेगरी, तो देख लो। एससी कैटेगरी 61 तक आई और एसटी कैटेगरी फिल हो गई। जनरल कैटेगरी 160, इससे नीचे नहीं गई। ऑल इंडिया में एससी कैटेगरी 111 तक आई एंड जनरल कैटेगरी 255 पे क्लोज, 225 पे क्लोज सॉरी। एसटी कैटेगरी फर्स्ट लिस्ट में ही फुल हो गई। थर्ड 2017 की थर्ड प्रोविज़नल लिस्ट, बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आपका, इसीलिए मैं, और मेरा भी टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। एंड द थर्ड वन, जो थर्ड लिस्ट प्रोविज़नल लिस्ट आई उसमें एससी और एसटी दोनों ब्लॉक हो गए एंड बचा जनरल कैटेगरी जो कि 136 तक आके रुकी। एंड यहाँ पे भी एससी और एसटी दोनों ब्लॉक हो गए और इसकी जो थी हाईएस्ट 160 रही और 147 इसकी लास्ट रही। ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 2017 में फोर्थ प्रोविज़नल लिस्ट निकली एंड वन मोर, 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड, ओके। ओके फाइन। 2017 में फोर्थ प्रोविज़नल लिस्ट निकली और यहाँ पे जनरल का गया 131 से 128 तक, ये लास्ट हो गया, फुल हो गया। इधर में जनरल का 132 से 145 तक गया और फुल हो गया। 4 प्रोविज़नल लिस्ट आई और ये कट ऑफ रहा। अब इसको खुद रिवाइंड करके देख सकते हो तुम कितना रहा, खुद लिख सकते हो, अपना रैंक मैच कर सकते हो, अपना स्कोर मैच कर सकते हो और उसके हिसाब से तुम आगे बढ़ सकते हो। ओके गाइस, so now this is all about 2017. Now let's move to 2018 डेटा। 2018 में दोबारा से एग्ज़ाम हुआ और इस बार 3 प्रोविज़नल लिस्ट शायद आई थी, 3 ही प्रोविज़नल लिस्ट आई थी, 3 में फुल हो गई थी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रोविज़नल लिस्ट फर्स्ट में सिमिलर 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, एक होम स्टेट के लिए और एक ऑल इंडिया के लिए। यहाँ पे एससी कैटेगरी 139 पे खुली और 60 पे बंद हुई। यहाँ पे एससी कैटेगरी
226 पे खुली, 176 पे क्लोज़ हुई। देन यहाँ पे ST कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 145 पे स्टार्ट हुई, 65 पे क्लोज़ हुई। यहाँ पे ST कैटेगरी 235 पे खुली और 218 पे बंद। यू कैन सी द डिफरेंस गाइस। यहाँ पे जनरल कैटेगरी 223 पे खुली, 153 पे बंद हुई। यहाँ पे जनरल कैटेगरी 340 पे खुली और 274 पे बंद। नाउ यू कैन कंपेयर योर स्कोर विद द होम स्टेट। ठीक है भाई। सो यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था बार बार, तो भाई इस वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग तो तुम्हारा BIT मेसरा में एडमिशन हो रहा है। नेम आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट उनका स्कोर भी शायद इसी के बीच में था। तो इसके अकॉर्डिंग तो तुम्हारा मेसरा में हो रहा है, पर ये 2018 का डेटा है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में SC ST कैटेगरी फुल हो गए, और यहाँ पे जनरल की जो लिस्ट आई थी वो 147 से खुली और 127 पे क्लोज़। ये सभी स्कोर्स हैं। ओके, सो ये सब स्कोर हैं, स्कोर 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 स्कोर, इसको रैंक मत मान लेना। सो यहाँ पे SC 137 पे 173 पे स्टार्ट हुई, 110 पे क्लोज़। ST कैटेगरी 113 पे स्टार्ट हुई और 75 पे क्लोज़। यहाँ पे जनरल कैटेगरी 245 पे स्टार्ट हुई और 192 पे क्लोज़। So this is all about the second provisional list. Now let's talk about the third and the last one. So ये है थर्ड प्रोविजनल लिस्ट 2018 का। देखते हैं इसका क्या रहा। ओके गाइस, सो इसमें होम स्टेट में 1-2 सीट बची, तो उन्होंने जनरल वालों को 143 वालों को ले लिया, 143 को लिया। एंड इधर फुल हो गया थर्ड लिस्ट में, ऑल इंडिया कोटा फुल। मीन्स कि 2018 में सिर्फ 2 ही लिस्ट निकली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक आते आते जनरल कैटेगरी फुल। अब बात करते हैं 2019 और वो साल जिसमें मेरा एडमिशन हुआ था भाई। बात करते हैं 2019 की। तो भाई बात है 2019 की, रिज़ल्ट आया, रैंक लिस्ट आई। मेरी रैंक लगी थी 200 के अप्रोक्स में कुछ, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मेरी 200 या 190 के बीच में कोई रैंक थी, 205 या कुछ ऐसे मेरी रैंक थी। स्कोर था मेरा 209। सो मुझे लगा कि भाई BIT में एडमिशन अपना नहीं होगा, बट फिर क्योंकि मैं JMA से था, सो वहाँ पे पूरी लिस्ट और वहाँ पे पूरे डेटा का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से होता है, पूरा चीर फाड़ कर देते हैं वो लोग। सो वो लोग क्या, सर ही हमारे जितेंद्र मिश्रा सर, सो उन्होंने फिर मतलब पूरा लिस्ट देखा, ऊपर वाले रैंक में फ़िल्टर आउट किए स्टूडेंट, और एक लिस्ट उन्होंने बनाई। उन्होंने नहीं बनाई, वो लिस्ट मैंने ही बनाई थी। सो उन्होंने बोला था कि सारा डेटा देखो, सभी चीज़ें देखो, उसके हिसाब से इसको लिस्ट को तैयार करो। सो जब दूसरी लिस्ट फ़िल्टर आउट होकर आई, मुझे लग रहा था फिर कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो कि मेरा एडमिशन हो गया। अब मैं बताता हूँ कि मेरा एडमिशन कौन सी लिस्ट में हुआ। ऑलरेडी 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बट दिस वीडियो इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम्हारे पैसे फंस जाएंगे, 1.5 लाख रुपए के करीब में तुम्हारे पैसे फंस जाएंगे अगर ये चीज़ तुम्हें ना पता होगी पहले से, क्योंकि वो कुछ बच्चों को पता नहीं थी तो उनके पैसे फंस गए, उनको 20-20 हज़ार रुपये रिटर्न मिले, बाकी सब उनका फंसा रह गया लालच के चक्कर में। सो भाई वीडियो देख लो पूरी, तो पैसे बच जाएंगे। 1 लाख से तो 10 मिनट ही बेहतर है ना देने। तो देखो वीडियो पूरी, लाइक कर देना अभी तक अच्छी लगी हो तो। सो गाइज़, बात करते हैं 2019 की, और ओके बात करते हैं 2019 की। तो 3 लिस्ट निकली थी, 3 प्रोविजन लिस्ट में कॉलेज भर गया था पूरा। सो बात करते हैं फर्स्ट लिस्ट की। सो फर्स्ट लिस्ट जो आई थी, अगेन होम स्टेट एंड ऑल इंडिया।
सो इसमें SC कैटेगरी जो ओपन हुआ था वो 86 पे हुआ था। ST कैटेगरी जो था वो 139 से 57 तक गया था। देख रहे हो भाई कितना डिफरेंस है यार, मतलब ख़तरनाक। और जनरल कैटेगरी जो था 261 से 167 तक गया था। यहीं पे बात करें ऑल इंडिया कैटेगरी की, तो यहाँ पे SC जो था वो तुम्हारा 316 भाई। यू कैन सी द डिफरेंस। 316 पे खुला 196 पे। गजब है यार। ST कैटेगरी जो था वो 219 पे खुला और 163 पे क्लोज़ हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर जनरल कैटेगरी। तो अब जनरल कैटेगरी में 350 पे, ओके। सो जनरल कैटेगरी जो थी 350 पे ओपन हुआ, 350 पे ओपन हुआ और ओपन किया हमारे धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने, जिसने कि एडमिशन भी लिया वहाँ पे। और एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि ये वही रोहित शर्मा है या फिर दूसरे वाला है, क्योंकि 2 रोहित शर्मा थे। बट हाँ, एडमिशन लिया एंड नाउ ही गॉट प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी। सो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्लोज़ हुआ 292 पे क्लोज़ किया आशुतोष पवार ने। आशुतोष पवार, इसने एडमिशन नहीं लिया था, इसका शायद कुछ फाइनेंशियल इशू था या कुछ ऐसा था, तो इसने छोड़ दिया था या फिर कुछ हो गया था या फिर जा नहीं पाया था, कुछ इशू था इसका। सो रोहित शर्मा ने ओपन किया और आशुतोष पवार ने क्लोज़ किया। 350 से 292 पे ये फर्स्ट लिस्ट रही इसकी। ठीक है भाई, तो अपने टाइम पे कंपटीशन बढ़ा दिया था हमने, समझ रहे हो। सेकंड लिस्ट जो आई थी उसकी बात कर लेते हैं अभी। ये होम स्टेट का है इधर, तो SC पूरा भरा गया, कंप्लीट क्लोज। और ST 84 पे मिला और ये मिला हमारे प्रिय मित्र दानी को, DS दानी। एंड ही आल्सो गोट प्लेस इन अ वेरी गुड कंपनी राइट नाउ एंड करंटली वर्किंग एज अ इंटर्न। सो ये मिला DS दानी को ST कैटेगरी और 84 मार्क्स पे। तो भाई के मज़े आ गए, तो लक था, मिल गया। लक नहीं था यार, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोडर ऑफ BIT मेसरा इन MCA डिपार्टमेंट। ओके, सो बात करते हैं इधर ST कैटेगरी एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी। सो जनरल कैटेगरी में जो स्टार्ट किया था वो किया था सचिन कुमार सिंह ने। सचिन कुमार सिंह इज़ आल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड एंड उसने स्टार्ट किया था 164 पे और क्लोज हुआ 125 पे। ही आल्सो गोट प्लेस इन अ वेरी गुड कंपनी एंड आई डोंट टेल द नेम राइट नाउ बिकॉज जब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट खुद लिस्ट रिलीज़ कर देगा तो मैं उसी के बाद ही बोलूँगा, क्योंकि भाई अभी मेरी डिग्री बची हुई है वहाँ से लेनी। एंड क्लोज़ किया ये भी मेरा एक दोस्त था आदित्य एंड ही आल्सो गोट प्लेस इन अ गुड कंपनी एंड करंटली वर्किंग एज अ इंटर्न इन द सेम कंपनी। सो ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई प्लेसमेंट वगैरह भी हुआ, जो आए बंदे जिसने ओपन किया क्लोज़ किया उसका प्लेसमेंट भी अच्छे से हुआ। बात करते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी में, तो SC ST की कैटेगरी की भर चुकी थी भाई सेकंड लिस्ट तक ही, बचा जनरल। तो जनरल स्टार्ट किया, जनरल ओपन किया 287 पे राहुल गुप्ता। ये वही राहुल गुप्ता है भाई, मतलब कि इसकी रैंक आई थी 79 ऑल इंडिया रैंक। इसको अलॉट हुआ था त्रिची। इसका इंटरव्यू भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है एंड ही रिसेंटली क्रैक 3 कंपनीज, 2 ऑन कैंपस एंड 1 ऑन कैंपस, 1 ऑफ कैंपस। ओके, एंड ही इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कोडर ऑफ BIT MCA। सो भाई इसने स्टार्ट किया और क्लोज किया शुभम ने। शुभम इज़ आल्सो गॉट प्लेस्ड एंड सेम। सो इतने पे ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात आती है
थर्ड प्रोविजनल लिस्ट की। तो थर्ड में यहाँ जनरल भरा गया, सब भरा गया, एसटी कैटेगरी का एक और उन्होंने लिया 41 पे। और इधर जनरल में ओपन किया श्रेया नायक ने। शी इज़ आल्सो वन ऑफ आवर क्लासमेट एंड प्लेज इन अ गुड कंपनी। एंड क्लोज किया 196 पे बुरहानुद्दीन बाबू खान वाला ने, बीबी लिख देते हैं, ये भी मेरा दोस्त था, अभी ये NIT कुरुक्षेत्र में है एंड ही रिसेंटली गॉट प्लेस इन द सेम कंपनी इन विच आई एम करंटली वर्किंग एज अ इंटर्न। सो NIT कुरुक्षेत्र में है भाई, तो इसने छोड़ दिया था। सो 196 पे इसने क्लोज़ किया था, तो यहीं बीच में मैं था 209 पे। सो यहीं बीच में तुम्हारा भाई था और मेरे को यहाँ पे मिल गया मैसरा। तो जिस दिन मैसरा मुझे मिला उस वक्त मेरे पास थे VIT, BHU, HBTU एंड IP यूनिवर्सिटी का USIT या फिर उसका मेन कैंपस वाला कॉलेज था। तो भाई मेरे को ये नहीं चाहिए था, ये भी मेरे को यहाँ मेरे को जाना ही नहीं था, चेन्नई वेन्नई मेरे को मतलब ही नहीं है। तो मेरे पास कुल मिला के 2 ऑप्शन थे, या तो BHU में चले जाओ। BHU में उस टाइम पे प्लेसमेंट थोड़ा डाउन जा रहा था उनका, तो उधर मेरा वैसे मन नहीं कर रहा था, बट उधर फ़ीस बहुत कम थी, तो मैं सोच रहा था कि यार उधर चले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर लूँगा या फिर कुछ ऐसा कर लूँगा, कोडिंग वगैरह अच्छे से तो हो जाएगा। लेकिन जब मुझे मैसरा अलॉट हुआ तो उसकी खुशी अलग ही थी भाई, उसकी खुशी में मतलब यहाँ पे मतलब बता नहीं सकता। तो जब मैसरा मेरे को अलॉट हुआ तो भयानक मेरे को खुशी मिली और ख़तरनाक वाला मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि जो मेहनत मैंने 7-8 महीने JMA में की थी वो सफल हुई। और एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। सो यहाँ पे एक ख़त्म हो गया पूरा सीन, थर्ड फुल, और इसी के साथ एनालिसिस भी फुल। लेकिन अभी जो मेन चीज़ आती है, अब मैं बात करता हूँ 2020 की। 2020 में इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ का रिलीज़ नहीं हुआ, सब इंटरव्यू बेस पे हो गया। उस इंटरव्यू में जिसका हुआ था उस बंदे का मैंने एक इंटरव्यू करा हुआ है, वो मैक में प्लेस हुआ है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसके बाद 221 उसके बाद 2000 उसके बाद 21 आता है एंड 21 में इन्होंने स्कोर रिलीज़ करना बंद कर दिया शायद, और इन्होंने सिर्फ बताया कि लिस्ट निकाल के कि तुम्हारा हुआ है। सो मैं मानता हूँ एंड ये 99% सच्ची होगा कि जब पिछले 5 सालों से ये चला आ रहा है तो भाई ड्रास्टिकली 1 साल में क्या घंटा कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। नॉर्मल सी बात है, जब यार पिछले 5 सालों से कोई चेंज नहीं हुआ, उसी स्कोर पे बच्चों का एडमिशन हो रहा है, जितना चेंज हो रहा है वो सब मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ये सब तुम रिवाइंड करके देख सकते हो और अपनी रैंक को कंपेयर कर सकते हो। अब वो तुम काम कर लेना, वो मैं नहीं बताऊंगा कि भाई तेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आई, सो इसके बाद इन्होंने इंटरव्यू या रिलीज़ करना बंद कर दिया स्कोर। बट ये भी सेम ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, 100% सेम ही होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा भाई, ठीक है। सो नाउ I hope that everything is clear to you and everything is crystal and clear to you. No doubt related to cut off. हर किसी को पता लग चुका होगा कि मेरा एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 साल का जो डेटा चला आ रहा है वो चेंज नहीं होने वाला है, वो वही रहेगा। तो अच्छा होगा कि तुम अपने दिल को दिलासा दो और आगे बढ़ो। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिनका स्कोर ऐसा है कि जिनको डाउट कि मैसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो यार बात करते हैं उन लोगों की। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, इनका स्कोर होगा अच्छा खासा, स्कोर इनका होगा 200 प्लस में ही कुछ चल रहा होगा, 250 प्लस में ही। सो देखो होगा क्या। अभी तुम मेरे से पूछोगे कि भाई अगर हमें पहले नोएडा मिलेगा कम स्कोर के चलते तो हमें मैसरा कैसे मिलेगा? ओके, सो अभी जो रैंक लिस्ट आएगी उसमें तुम्हारे नाम के आगे लिखा आएगा कि तुम्हें नोएडा अलॉट हो गया है। फिर एक डेट देंगे वो और बोलेंगे कि इस तक अपना पेमेंट करो, पेमेंट करने के बाद यहाँ एडमिशन ले लो, तभी तुम्हारा अपग्रेड होगा मैसरा में।
ये बोलेंगे नहीं, वो ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि हाँ मेरा वो स्कोर है जिस पे मेसरा मिलता है, तो मैं नोएडा में एडमिशन लेके अपनी सीट फंसा लूँ, ताकि अगली राउंड में जब सेकंड प्रोविज़नल लिस्ट में सीट खाली हो तो मेरा नाम खिसक के उस रेंज में पहुँचे। अब मान लो फर्स्ट लिस्ट में 30 बच्चों का भरा गया, लेकिन 30 में से 10 बच्चे ही पहुँचे या फिर 28 बच्चे पहुँचे मेसरा में, 2 सीट खाली हो गई और तुम्हारा स्कोर इन 2 के जस्ट बाद वाला है। इनका स्कोर है 208 और तुम्हारा है 209। तुम्हारा है 208, इनका था 209। 209 वाले 2 निकल गए और तुम नोएडा में बैठे हुए हो, तो सेकंड लिस्ट में नाम किसका होगा? नाम तुम्हारा जाएगा मेसरा में 29वें बच्चे के तौर पर। वहाँ लिखा आएगा तुम्हारे नाम के आगे, जैसे कि अमन था एक लड़का, सो अमन अपग्रेडेड फ्रॉम नोएडा कैंपस। ठीक है, तो तुम्हारा मेसरा में हो गया, सिंपल। लेकिन तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, 1 लाख कुछ रुपए जो भी फ़ीस होगी वो देख लेना तुम, वो तुम्हें सबमिट करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारा अपग्रेड नहीं हुआ तो तुम नोएडा में तो लोगे नहीं, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है नोएडा तो तुम नोएडा में तो लोगे नहीं। अब जब तुम्हें नोएडा में लेना नहीं है और तुम्हारी फ़ीस सबमिट हो चुकी है तो तुम्हें अपनी फ़ीस वापस निकालनी पड़ेगी, फ़ीस वापस लेनी पड़ेगी। तो रिफ़ंड जब वो करेंगे फ़ीस, तो वो अमाउंट डिडक्ट करते हैं अच्छा खासा। तो अगर तुम्हारी रैंक इस 5 साल के डेटा के इधर उधर भी नहीं है तो तुम ये गलती मत कर देना कि फ़र्स्ट राउंड में पैसे जाके वहाँ जमा कर दिए इस उम्मीद में कि तुम्हें मेसरा मिलेगा। अब रैंक अगर तुम्हारी इधर उधर भी है, उसके आसपास भी है, तो तुम रिस्क ले सकते हो 10, 20, 25 हज़ार रुपये का, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अगर मेसरा मिल गया है ना, अगर गलती से मेसरा मिल गया तो तुम्हारे वो 25-30 हज़ार रुपये सब तुम्हारे इक्वलेंट हो जाएगा। सो गाइस, ये था पूरा का पूरा सिनेरियो। अगर इस वाले प्रोसेस पे तुम्हें एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। इसका गेम है, पूरा गेम खेलना पड़ता है पूरा यहाँ पे, कि फ़र्स्ट राउंड में करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ें, पैसे जमा करने हैं कि नहीं करने, कितने कटेंगे, कितने मिलेंगे वापस, कितने रिफ़ंड होंगे, रिफ़ंडेबल है कि नहीं है। सो अगर उसके लिए वीडियो चाहिए, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हो चुका है, सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे अब तक। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना इसी वीडियो के, मैं रिप्लाई कर दूंगा एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि मेरा भी इंटर्नशिप चल रहा है तो मुझे उतना टाइम नहीं है कि हर एक का रिप्लाई करूँ मैं बार बार, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो, और अपना मैच करके इस 5 साल के डेटा से नीचे कमेंट करना कि तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। And if you have any doubt, then please comment it down. And that's all for today. Let's meet in the next video. Till then, take care. Bye.